My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing concept of squares and rhombus. Start करते हैं session को. So first we'll be discussing rhombus. And rhombus is basically a parallelogram in which angle between diagonals is 90 degrees. So all the properties of parallelogram will apply. Additionally, angle between diagonals is 90. So due to angle between the diagonals being 90 degrees, all the side lengths are equal. In case of a diagonal, in case of a rhombus, all side lengths are equal. So first property, that diagonals bisect तो करते हैं diagonals parallelogram में भी, तो diagonals bisect at 90 degrees. Second property, all sides are equal. So AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. All side lengths are equal. Also opposite angles will be equal. Because ये तो parallelogram में भी होता है. Opposite angles are equal. So this angle will be equal to this one. Angle A is equal to angle C. Similarly, angle D will be equal to angle B. Simple छोटी छोटी बातें हैं. Okay. Next, in a general, diagonals are not equal. So AC is not equal to BD in most cases. कब होगा equal? AC is equal to BD when rhombus is also a square. Is also a square. स्क्वायर भी हो जाएगा तो फिर AC और BD इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉट. ओके, क्लियर यहां तक? Since all sides are equal, let us say the side lengths are equal to A, and if side lengths are equal to A, so perimeter will be equal to sum of all sides, and hence perimeter will be equal to 4A. Perimeter will be equal to 4A. Okay, clear? ठीक है. Next property. So diagonals also bisect vertex angles. Not just bisect each other, diagonals also bisect vertex angles. But vertex angles 90 तो है नहीं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है. So this will be equal to this. Similarly, since these two angles are equal, opposite angles are equal, so this will also be equal to this. So this angle is equal to 1, this will also be 1, this will also be 1, this will also be 1. Similarly, these angles will also be equal. So if this is 2, this will also be 2, and so will be these two. Okay, so diagonals bisect vertex angles. Additionally, area क्या होगा? The angle between diagonals is 90 degrees, and if diagonals are D1 and D2, let us say AC is equal to D1 and BD is equal to D2. So if diagonals are D1 and D2, the area of rhombus will be 1 by 2. For any parallelogram, area is 1 by 2 D1 D2 sin theta. So for rhombus, this will be 1 by 2 D1 D2 because theta is 90 degrees. In general, area of a quadrilateral is 1 by 2 D1 D2 sin theta. But since theta is 90 degrees for a rhombus, so area will be 1 by 2 D1 D2. Is that clear? Okay. ठीक है. Now next property. So since diagonals bisect each other, so this will be equal to this. If this point is O, this is A, this is B, this is C, this is D. So if AC is D1 and BD is D2, so OC will be equal to OA will be equal to D1 by 2. Similarly, OB will be equal to OD will be equal to D2 by 2. So triangle OBC is a right angle triangle. OC is D1 by 2 and OB is D2 by 2. And side length BC is A. Apply कर दो Pythagoras. So D1 by 2 whole squared
plus d2 by 2 whole squared. This is equal to a square. This is equal to a square. Okay. So क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा फाइनली? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बार बार लगातार हमें यूज करना पड़ेगा. Many questions in any good question of a rhombus will have to use this property d1 square plus d2 square is equal to 4a square. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट अवे. So first question, in a rhombus, if the two diagonals are 24 and 32 centimeter, so find the perimeter of the rhombus. Diagonal lengths are given 24 and 32. And we need to find out perimeter of the rhombus. क्या होगा perimeter of the rhombus? So d1 square plus d2 square, this is equal to 4a square. So ऐसे साइड लेंथ निकल आएगा. Okay, 24 square plus 32 square divided by 4 will be a square. या तो पहले स्क्वायर कर लो फिर डिवाइड करो 4 से, या डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो. 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है. So basically if you are dividing by 4, this becomes 24 square by 4 becomes 12 square plus 16 square. That is equal to a square. ठीक है, सो हमारा a square क्या आ जाएगा? हालांकि मेहनत हमने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी इस क्वेश्चन में, इतनी करने की जरूरत नहीं थी. 144 plus 256, so that is equal to 400. So a comes out to be equal to 20 and hence perimeter will be equal to 80. ठीक है, ये तो फॉर्मूले का अप्रोच हो गया, बट एज सच फॉर्मूले की जरूरत थी क्या? स्ट्रेट अवे हम इन डायगोनल्स को ड्रॉ करते और हमें पता है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. एक साइड फाइंड आउट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे. सो फॉर फाइंडिंग आउट वन साइड हमें एक छोटू वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है बस, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ. ठीक है, सो ये पूरा हमारा रोम्बस है. पूरा रोम्बस बनाने की तो जरूरत है नहीं. ठीक है, ओ ए बी लेट अस से ड्रॉ कर लिया एंड ओ ए विल बी हाफ दैट ऑफ डायगोनल, तो दिस विल बी 12. ओ बी विल बी हाफ दैट ऑफ अदर डायगोनल व्हिच विल बी 16. सो एक साइड 12 है, एक 16 है इन द राइट एंगल ट्रायंगल, सो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज विल बी 20. तो वन साइड विल बी 20 एंड इफ वन साइड इज 20 तो पेरीमीटर विल बी 80. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, one diagonal of a rhombus is twice the length of the other diagonal. If the area of the rhombus is 81 square centimeter, then find the side length of the rhombus. One diagonal is twice the length of the other diagonal. So let us say one diagonal is D, other diagonal will be 2D. If D1 is equal to D, D2 will be equal to 2D. And hence area will be equal to 1 by 2 D1 D2. यानी कि 1 by 2 into D into 2D. So that will be 2D square by 2, which is equal to D square only. And D square is equal to 81. So D comes out to be equal to 9. यानी कि one diagonal is 9 and other diagonal is 18. ठीक है, one is 9, other is 18. Isn't it so? ठीक है, one is 9, other is 18. So side length क्या आ जाएगा? 9 square plus 18 square is equal to 4a square. And hence a square will be equal to 9 square, which is 81, plus 18 square 324 divided by 4. So this is 405 by 4, or basically 5 by 4 into 81, that is a square. तो a will be equal to the square root of 5 divided by 2 का 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9. तो 9 by 2 into root 5 यानी कि 4.5 root 5. This will be side length. 4.5 root 5 will be the side length. Okay. Is that part clear? ये तो वैल्यूज इजी थी हमारे पास, 9 स्क्वायर 18 स्क्वायर. अगर वैल्यूज ज़्यादा बड़ी होती हैं, लेट अस से होती है 17 स्क्वायर 34 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो हमें ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद 9 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर, वी कैन से दैट हम 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के साथ वर्क कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि डायगोनल्स का रेशियो क्या है, 1:2 का रेशियो है. सो इफ वन डायगोनल इज 1 यूनिट, सेकंड डायगोनल इज 2 यूनिट्स, और वहां से हमें साइड का रेशियो निकाल लेना है कि साइड किस रेशियो में होगी, और अकॉर्डिंगली फिर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर फाइनली हम d से मल्टीप्लाई कर देते. तो वन डायगोनल इज 1 यूनिट, अदर डायगोनल इज 2 यूनिट्स. इजंट इट सो? यही तो है. ठीक है, और
क्योंकि हमें डायगोनल का हाफ से डील करना है, सो दिस विल बी 1/2, या फिर बेटर है कि इसको 1:2 की बजाय एज्यूम कर लो, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है फाइनली, 2:4 एज्यूम कर लेते हैं। डायगोनल्स का रेशियो है 2:4 का। सो half the first diagonal will be 1 unit, half the second diagonal will be 2 units, and then side which will be hypotenuse will be equal to square root of 5. So if first diagonal is 2 units, square root of 5 is our side length, but actual length क्या है first diagonal का, that is equal to 9, यानी कि 4.5 टाइम्स है। So side का भी actual length क्या होगा भाई, side आया हमारा √5, तो actual length will be √5 into 4.5 and hence 4.5 √5। ठीक है, this is our first diagonal, दिस इज सेकंड डायगोनल एंड दिस इज साइड लेंथ। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जब भी कैलकुलेशन मुश्किल होगा तो वहाँ पे हम 17 स्क्वायर हो, 34 स्क्वायर हो, बड़ी लंबी वैल्यूज हो, 79 स्क्वायर हो, तो वहाँ पे वो कैलकुलेट करने थोड़ी बैठेंगे। स्ट्रेट अवे हम देखेंगे कि हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी इस्तेमाल करके फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक साइड हमारा होता है, एक डायगोनल होता है 79 एंड अदर वुड हैव बीन 158, तो फिर वहाँ पे 79 स्क्वायर प्लस 158 स्क्वायर और फिर डिवाइड बाई 4, ऐसे थोड़ी करते। स्ट्रेट अवे हम देखते हैं रेशियो आ रहा है 1:2 का, ठीक है, या 2:4 का, बिकॉज हमें अल्टीमेटली डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू है 79 और फाइनली हमारा 2:5 4:√5, दैट इज द रेशियो ऑफ डायगोनल 1, डायगोनल 2 एंड साइड का। सो √5 हमारा अल्टीमेटली रेशियो आ रहा है। सो 2 की एक्चुअल वैल्यू है 79, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 79/2, सो दिस विल बी √5 into 79/2, दैट विल बी द साइड लेंथ। ओके, next question, if the diagonal, one diagonal of a rhombus is 8√3 and other diagonal is equal to its side, to find the area of the rhombus. Other diagonal is equal to its side, so what will be area of the rhombus? One diagonal is 8√3. So if other diagonal is equal to x, let us say, तो side length भी क्या होगा, x ही होगा। And we know d1 square plus d2 square is equal to 4a square. So d1 square is 8√3 का होल स्क्वायर प्लस d2 इज x, ठीक है, 2x मान लेते हैं, बिकॉज अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा ना। नहीं, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे x ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इंटू 3, √3 का स्क्वायर इज 3 and hence x is equal to 8. So side length comes out to be 8, other diagonal is also equal to 8, so area will be equal to 1/2 into diagonal 1 into diagonal 2, so 64√3/2, which will be 32√3. Our answer will be 32√3 square centimeter. Okay, clear है? So that will be the answer. Next question करते हैं। A rhombus has one diagonal of 18 centimeter length and the perimeter of rhombus is 60 centimeter. To find the radius of the circle inscribed in the rhombus. Radius of the circle inscribed in the rhombus. Okay. So let us first draw the diagram of the rhombus. And then we also have to draw a circle inside it. ठीक है, सर्कल एज सच नहीं है, बट समझ लो, मान लो ये सर्कल है। ओके, सो वन डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 60। सो इफ पेरीमीटर इज 60 तो साइड लेंथ कितना आ जाएगा, साइड लेंथ विल बी 60/4 यानी 15। सो वन साइड इज 15, this is one diagonal, this will be second diagonal. So let us say first diagonal is 18 centimeter length. So if diagonal is 18 centimeter, so this will be equal to 9, isn't it? This will be 9. और second length क्या होगा, this is a right angle triangle. So one side is 9, other is 15, 9 15 3:5 का रेशियो है, यानी कि 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है। So 3 units is equal to 9, 1 unit is equal to 3, तो 4 unit आ जाएगा 12, यानी कि सेकंड साइड इज इक्वल टू 12। सो डायमेंशंस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल है 9, 12 और 15, और हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द रोम्बस। सो दिस विल बी द रेडियस।
एंड सिंस द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, तो ये जो हमारा लाइन है क्या है, टेंजेंट है. द रोम्बस, द साइड ऑफ द रोम्बस इज टेंजेंट टू द सर्कल. तो अगर साइड हमारा टेंजेंट है सर्कल से, तो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर. अब इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, और ऐसा ट्रायंगल हम बार बार देख चुके हैं, सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, लेट अस से दिस इज ओ ई. तो क्या ओ ई की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो? देखो एक तरीका ये है कि एरिया कंपेयर कर लो ट्रायंगल ओ ए बी का. सो एरिया निकालने के दो तरीके हैं, बिकॉज ए ओ इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 into OA into OB, and that will also be equal to 1/2 into OE into AB. So 1/2 into 9 into 12, and that is equal to 1/2 into OE into 15. और यहाँ से OE फाइंड आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया. OE will be equal to 108/15 और 36/5, which is 7.2 सेंटीमीटर. ठीक है, बट इतना करने की ऐसा जरूरत नहीं थी. अगर तुम बार बार सेशंस देख रहे हो, लगातार तुमने ट्रायंगल वाले सेशंस देखे हैं, तो यू नो कि OE विल डायरेक्टली बी इक्वल टू 9 into 12/15. OE विल डायरेक्टली बी इक्वल टू OA into OB डिवाइडेड बाई AB. सो स्ट्रेट अवे 7.2 आ जाएगा. और क्वेश्चन में रेडियस ही तो पूछा है, तो रेडियस आ गया हमारा इक्वल टू 7.2. रेडियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7.2. दैट विल बी आवर आंसर. दैट्स व्हाट नीड टू बी डन. ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन द फिगर ABCD is a rhombus and BCE is an isosceles triangle with BC is equal to CE and angle CBE is equal to 84 degrees and angle ADC is equal to 78. Find the angle DEC. एंगल DEC क्या होगा? सो ABCD तो rhombus है, rhombus है, all sides will be equal. All sides of rhombus will be equal. And BCE is an isosceles triangle. क्योंकि BCE isosceles triangle, so BC is equal to CE. So BC and CE are also equal. BC and CE. Angle CBE is 84 degrees. CBE, this angle is 84 degrees. And since BC is equal to CE in triangle BCE, so angle angle CBE angle CBE, this will be equal to angle CEB. So this angle will also be 84. And if these two angles are 84 degrees, triangle के तीनों angles का sum 180 है, so the third angle will be 180 minus 168. So this angle will be 12 degrees. Okay, this angle will be 12 degrees. अब बात करते हैं rhombus ABCD की. तो CBE तो 84 आ गया था, ADC 78 है, तो this angle of the rhombus is 78 degrees. And angles on the same side of any parallelogram, rhombus भी तो parallelogram ही है, so on any parallelogram is 180, supplementary होते हैं. So this angle will be 102 degrees because sum of this angle and this one will be 180. So this will be 102 degrees. Now focus on triangle DCE. So triangle DCE में DC is equal to CE. So angle CDE will be equal to angle CED. Both angles will be equal. और बीच वाला एंगल हमें पता है, दैट इज 102 प्लस 12, तो 114 डिग्रीज है. एंगल DCE इज 114 डिग्रीज. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 102 प्लस 12. सो 180 माइनस 114, दैट इज 66 डिग्रीज. तो थीटा हमारा आ जाएगा इक्वल टू 33 डिग्रीज, और यही आंसर हो जाएगा. एंगल DEC विल बी इक्वल टू 33 डिग्रीज. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, बाकी एंगल्स भी निकालने हो तो सारे एंगल्स निकले हुए हैं. इफ दिस इज 78, दिस विल आल्सो बी 78. तो अकॉर्डिंगली ये पूरा एंगल भी निकाला जा सकता है 78 प्लस 84, और एंगल ये तो 102 डिग्रीज है ही है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. rhombus BFDE is inside rhombus ABCD as shown. The area of rhombus ABCD is 24 and angle BAD is equal to angle EDF is equal to 60 degrees. What is the area of rhombus BFDE? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. Pause the video and take your time. Take a bit of time. Very easy question once you've understood the concept. ठीक है, तो एक बार ट्राई करो. यूज द डायग्राम, बिकॉज बिना डायग्राम को यूज किए कैसे करोगे. तो rhombus BFDE is inside rhombus ABCD as shown.
area of rhombus ABCD is 24, angle BAD is equal to angle EDF is equal to 60 degrees. What is the area of rhombus BFDE? देखो प्रॉपर्टीज जो है हमारी पैरेललोग्राम की, रॉम्बस की, सब हमें यूज करनी पड़ेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए हमेशा। कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। तो एरिया ऑफ रॉम्बस ABCD इज 24, तो रॉम्बस ABCD का एरिया 24 और एरिया क्या होता है 1/2 D1 D2, दिस इज 24, so D1 into D2 दिस इज इक्वल टू 48 फॉर ABCD, रॉम्बस ABCD के लिए है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EDF एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ओके, सो एंगल BAD 60 है। एक बार दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट डायगोनल विल बी गोइंग थ्रू EF। ओके, क्लियर है। एंड सेकेंड डायगोनल इज DB ओनली, which is also a diagonal of rhombus BFDE. This is the intersection point, point O. And EF is the diagonal of second rhombus by construction. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो A, E, F, C, these are collinear points on the same line. Okay, and angle BAD is 60 degrees. Now since diagonal bisects the vertex angle, that we know कि diagonal of a rhombus bisects vertex angle, so this angle will be 30, these two angles will be 30 degrees. अगर पूरा एंगल 60 है, these two will be 30, and this angle is a right angle because diagonals है 90 डिग्री पे bisect करते हैं। So this is 90, this is 30. So in this right angle triangle, this will be 60 degrees. This will be 60 degrees. Okay. And if that is the case, then we know 30, 60, 90 वाला हमारा ट्रायंगल बन रहा है। And in 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल में ADO इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। So this is A, this is D, this is O, this angle is 30, this is 60, this is 90. तो रेशियो ऑफ साइड लेंथ क्या होता है 30 से 60 90 वाले ट्रायंगल में रेशियो ऑफ साइड लेंथ 30 के सामने वाला साइड सबसे छोटा होता है, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। 60 के सामने वाला साइड इज √3 और 90 के सामने वाला साइड इज 2 यूनिट्स, तो 1 is to √3 is to 2। सो इफ दिस 30 के सामने वाला साइड इज सबसे छोटू वाला, तो दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, isn't it? So let us say this is equal to x, this is equal to x, and if this is x, तो 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा हमारा √3x, this will be √3x, और 90 के सामने वाला साइड will be 2x। तो साइड लेंथ ऑफ ABCD is 2x, और डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, वन डायगोनल विल बी x, हाफ है तो पूरा हो जाएगा 2x, तो लेट अस से D1 is 2x एंड सेकंड डायगोनल विल बी √3x का डबल यानी 2√3x। तो वन डायगोनल इज 2x, सेकंड इज 2√3x। ओके, सो दैट पार्ट इज क्लियर। अब सेकंड वाले इनसाइड वाले रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस BFDE की। ओके, रोम्बस एक सेकंड, अच्छा इसमें ओके यहीं पे काम करना पड़ेगा। सो इन रोम्बस BFDE ऑब्जर्व दैट दिस एंगल इज ऑल्सो 60, भाई ये वाला एंगल भी तो पूरा 60 है, बट सिंस डायगोनल बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल को, तो यहां पे तो बाइसेक्ट करेगा, दिस विल ऑल्सो बी 30। दिस एंगल दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्रीज, ये भी तो 30 होगा, ये 30 है, ये भी राइट एंगल है, सो दिस इज 60। 60 के सामने वाला साइड इज x, तो 30 के सामने वाला साइड क्या होगा, यानी कि EO की लेंथ क्या होगी, EO की लेंथ क्या होगी, 30 के सामने वाला साइड क्या होगा। अगर 60 के सामने वाला साइड x है जो कि होता है करस्पॉन्ड करता है √3 को, तो 30 के सामने वाला साइड क्या होगा, 1 यूनिट होगा, यानी कि x अपॉन √3 होगा। सो EO दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन √3। सो फॉर रोम्बस BFDE वन डायगोनल इज ऑफ लेंथ 2x, क्योंकि वो तो कॉमन ही है, सो वन डायगोनल इज ऑफ लेंथ 2x, लार्जर डायगोनल, और स्मॉलर डायगोनल क्या होगा, x अपॉन √3 का जस्ट डबल, सो दैट विल बी 2x अपॉन √3। These are two diagonals, okay, D1 and D2 for the smaller rhombus। अब बस एरिया निकाल लेते हैं, एरिया का रेशियो मिल जाएगा यहां से हमको। तो फॉर द लार्जर rhombus एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स
2x into 2 root 3x. And for the smaller diagonal, this is 1 by 2 into 2x into 2x by root 3. तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1 by 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2x भी कैंसिल आउट हो गया, x से x भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, रूट 3 इज टू 1 by root 3 हो गया. एरिया कम्स आउट टू बी रूट 3 इज टू 1 by root 3. या फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, रूट 3 से, सो दिस बिकम्स 3 is to 1. सो एरिया का रेशियो आ जाएगा 3 is to 1. So 24 is the area of the rhombus ABCD. So 8 will be area of the rhombus BFDE. 8 will be area of the rhombus BFDE. तो अगर ट्रायंगल ढंग से समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अदरवाइज यहीं बैठ के होगे 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल पे, वहाँ पे फंस रहे होगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर वहाँ पे अटक रहे हो तो एक बार फिर से एक बार इन चीज़ों को समझ लो. 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार वो चीज़ यूज में आएगी. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Next is, if a rhombus has area 64 square centimeter and side length 10 centimeter, then find the length of the smaller diagonal. Area है 64 square centimeter और side length कितने हैं? 10 centimeter. Then we have to find the length of the smaller diagonal. What will be length of the smaller diagonal? Okay. So area is 1 by 2 d1 d2, which is 64. And his product of diagonals d1 d2 comes out to be 128. And side length है 10. यानी कि a की वैल्यू है 10. So d1 square plus d2 square, this is equal to 4a square. A square is 100. So d1 square plus d2 square, this is equal to 400. And the question needs length of the smaller diagonal. ठीक है, let us assume d1 is greater than d2. तो हमें क्वेश्चन में चाहिए d2 की वैल्यू क्या होगी. एंड टू फाइंड आउट d2 का वैल्यू हमें समहाउ d1 प्लस d2 चाहिए होगा. d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर गिवन है. अब सेपरेटली ऐसे तो नहीं निकाल सकते, तो हमें d1 प्लस d2 चाहिए होगा. कैसे मिलेगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर गिवन है, d1 d2 गिवन है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा. सो इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, कैसे ऐड करो? d1 प्लस d2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2. सिमिलरली d1 माइनस d2 होल स्क्वायर, that is equal to d1 square plus d2 square minus 2d1 d2. और यहाँ पे पहुंच गए तो स्क्वायर रूट लेके d1 प्लस d2 d1 माइनस d2 मिल जाएगा. फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करके d1 निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके d2 निकाल सकते हैं. सो लेट अस से d1 d2 is equal to 128. दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर is equal to 400. दिस इज सेकंड रिजल्ट. तो सेकंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर plus 2 times d1 d2, that will be equal to 400 plus 256, that is 656. And if we subtract second minus 2 times first करें तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस 2 d1 d2, and this will be 400 minus 256, so this will be 144. First case is d1 plus d2 whole square, which is 656. Second case is d1 minus d2 whole square, which is 144. तो सेकंड में तो इजीली दिख रहा है d1 माइनस d2 कितना आ रहा है आपका? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 12 आ जाएगा. और फर्स्ट में d1 प्लस d2 क्या आ जाएगा? 656 इज 16 का मल्टीपल है. दिस इज 16 इंटू 41. 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो d1 प्लस d2 विल बी इक्वल टू 4 रूट 41. 4 रूट 41 and d1 minus d2 is equal to 12. Now we need to find out smaller diagonal, which will be d2. और to find out d2 we can subtract d1 plus d2 में से d1 minus d2 को subtract कर दो, तो d1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ d2. 2d2 will be equal to 4 root 41 minus 12, and hence d2 will be equal to 2 times root of 41 minus 6. d2 will be 2 times root 41 minus 6. ओके, क्लियर है? अगर ऐड कर दे तो d1 मिल जाता वहां से, तो d1 वुड हैव बीन 2 times of root of 41 plus 6. बट हमें चाहिए था स्मॉलर डायगोनल, सो दिस विल बी आवर आंसर. d2 विल बी द आंसर. d2 विल बी आवर आंसर बिकॉज दैट इज अ स्मॉलर डायगोनल. 2 times स्क्वायर रूट ऑफ 41 minus 6. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो?
Similar question was asked a few years back in the CAT as well. Okay. In that question, a larger diagonal was asked. Okay. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A person has a rectangular plot of dimensions 40 meter cross 50 meter. He wants to construct a fence in the shape of a quadrilateral with equal side lengths such that the area enclosed is maximum. A person has a rectangular plot of dimensions 40 meter cross 50 meter. He wants to construct a fence in the shape of a quadrilateral with equal side lengths. तो हमें क्या चाहिए? एक quadrilateral which has equal side lengths such that area enclosed is the maximum. So we have to find the area of the quadrilateral. What will be area of that quadrilateral? Given तो हमें rectangular plot. तो अगर इक्वल साइड लेंथ नहीं चाहिए होता तो फिर पूरा पूरा प्लॉट ही अपन कब्जा लेते है कि नहीं, उसी में फेंस बना देते, कोई समस्या थोड़ी थी. तो 40/50 का है, बट कंडीशन ये है साइड लेंथ इक्वल होना चाहिए. अब दो टेरिटरी के लिए पीछे आवाज आ रही है, अगर बैकग्राउंड में सुनाई पड़ रही है तो ठीक है. तो बहरहाल इन दिस क्वेश्चन डायमेंशंस आर 40x50. अब एक अप्रोच ये है कि हम स्क्वायर फाइंड आउट करें. ठीक है, स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम दिखेगा, बट क्या वो मैक्सिमम एक्चुअल में होगा? जो क्वाड्रिलेटरल हमें चाहिए क्या उसका मैक्सिमम एरिया होगा? देखो इक्वल साइड लेंथ चाहिए तो दो ही केसेस बनेंगे हमारे, जिनका एरिया भी मैक्सिमम हो. दोज विल बी ईदर इट विल बी अ स्क्वायर और इट विल बी अ रोम्बस. एंड एज आई सेड इन द स्टार्ट कि अगर इक्वल साइड लेंथ का चक्कर नहीं होता तब तो फिर पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट ही कब्जा लेते, 40x50 का फेंस बना देते, वो हमारा मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज्यादा एरिया हो ही नहीं सकता. दैट इज द मैक्सिमम एरिया पॉसिबल. बट हमें चाहिए इक्वल साइड लेंथ, तो या तो स्क्वायर चाहिए या रोम्बस चाहिए. अगर स्क्वायर चाहिए होगा तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? मैक्सिमम. स्क्वायर बना पाओगे तुम 40x50 का, 40x40 का. सो मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल बी 40x40, 1600 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एक बार रोम्बस के लिए भी ट्राई करके देखते हैं कि रोम्बस का मैक्सिमम एरिया में कितना मिल सकता है. बिकॉज रोम्बस हमें डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री चाहिए. हमें कोई कंडीशन नहीं है कि वर्टेक्स एंगल्स भी 90 डिग्री हो, तो वो टेंशन नहीं है हमको. तो रोम्बस का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, ट्राई करते हैं. लेट अस से रोम्बस का साइड लेंथ इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि साइड लेंथ तो इक्वल होगा. थोड़े से साइड लेंथ इज इक्वल टू एक्स. ओके, अब अगर हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए, सो इन दैट केस साइड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 40, तभी तो मतलब है. अगर उससे कम आए तो क्या फायदा. सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 40. ओके, ठीक है. नाउ लेट अस से साइड लेंथ इज इक्वल टू एक्स विच इज ग्रेटर देन 40. तो यहां तक आ रहा है अपना, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, एंड इफ दिस इज एक्स तो सेकेंड साइड क्या होगा? दिस विल बी द सेकेंड साइड. This will be the second side. Similarly, this will be x and this will be the last side. क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो रोम्बस? क्या रोम्बस इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है. सो इफ दिस इज द केस देन जो बच गया, दिस विल बी 50 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल तो 50 है, एंड दिस इज इक्वल टू 40 ओनली. एंड सिंस ऑल साइड लेंथ्स आर इक्वल, so this is also equal to x. Apply Pythagoras because एक अननोन है, सॉल्व हो जाएगा. सो 50 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. 100x विल बी इक्वल टू 2500 प्लस 1600 यानी कि 4100, एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 41. x विल बी 41. तो अपना क्या बन गया? 41 49 वाला पाइथागोरस बन गया. x आ गया इक्वल टू 41. एरिया विल कम आउट टू बी इक्वल टू, एरिया के लिए डायगोनल चाहिए होगा. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ है. एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था? एरिया इंक्लोज मैक्सिमम नहीं चाहिए था, पेरीमीटर इंक्लोज शुड हैव बीन मैक्सिमम.
क्वेश्चन में ये चीज गड़बड़ लिखा हो, पेरीमीटर शुड बी मैक्सिमम एंड वी नीड टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ओके, पेरीमीटर इंक्लोज शुड बी मैक्सिमम, पेरीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लो. ओके, ठीक है, पेरीमीटर इंक्लोज्ड शुड बी मैक्सिमम. सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमारा स्क्वायर के कैसे पेरीमीटर आया 160 आया पेरीमीटर, बट यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा 41 इंटू 4, दैट विल बी 164, बिकॉज एरिया तो कम आ जाएगा स्क्वायर से. पेरीमीटर विल बी 164. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, एरिया नहीं पेरीमीटर होना चाहिए यहाँ पे. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now let us move on to the next topic, that is square. So square is basically a parallelogram, but it is also a rectangle, also a rhombus. So this is rectangle plus rhombus combined. So it will have all the properties of rectangle as well as rhombus, और parallelogram की सारी properties होंगी. So in that case, all sides are equal, which is a property of rhombus. All vertex angles will be 90 degrees, which is a property of rectangle. And then diagonals bisect at 90 degrees, which is a property of rhombus. Okay, and are equal. Diagonals bisect at 90 degree and are also equal. ठीक है, तो bisect at 90, this is because of rhombus. ये rhombus की प्रॉपर्टी है. और diagonals equal किस में होता है? रेक्टेंगल में. तो this is a property of rectangle. Isn't it so? Also diagonals bisect the vertex angle, which is again a property of rhombus. Okay, so this angle will be equal to this one, and since this complete angle is 90, all angles are, all vertex angles are 90 degrees, so 45 होगा. Similarly, these will also be 45, and so will be these, and so will be these. All angles are 45, and so these are also equal. A, B, C, D, and all side lengths are anyway equal. AB is equal to BC, A is equal to CD, A is equal to DA. Okay, ठीक है. AB is equal to BC, is equal to CD, is equal to DA, and this is equal to, let us say, side length A है. And similarly, OA will be equal to OB, will be equal to OC, will be equal to OD, and this will be equal to AC by 2 or BD by 2, or we can say D by 2, because both diagonals are equal. ठीक है, okay. Now since this angle is 90 degrees, this is A, this is D by 2, this is also D by 2. So we can say D by 2 whole square plus D by 2 whole square, this is equal to A square. So D square by 4 plus D square by 4 and D square by 2, this is equal to A square. So D square is equal to A square, and hence D is equal to root 2 A or A root 2, because A is outside root 2. ठीक है, so D is equal to root 2 A, or side length A is equal to D by root 2.
एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 d2 यानी 1/2 d स्क्वायर, एंड सिंस d इज a रूट 2, सो d स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दो रूट 2a का होल स्क्वायर, दैट विल बी 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर. So area will be 1/2 times product of diagonals 1/2 times d square, और that is also equal to side का whole square. Okay, ठीक है. और ये तो पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी है कि डायगोनल डिवाइड स्क्वायर इनटू 4 इक्वल एरियाज. ठीक है, सो ऑल द एरियाज आर इक्वल. If this is a, this will also be a, this will also be a, this will also be a, total area will be 4a. Okay. ठीक है. Next property. Now let us say we have a square inside a circle and another square circumscribing the circle. So there are two squares. One is circumscribing the circle and second square is inside the circle. And we need to find out ratio of areas of these squares as well as the circle. So ratio of areas. क्या होगा? Pause the video and first of all find out at your end. ठीक है, अगर हमें let us say एक एज्यूम कर लेते हैं हम कि फॉर द लार्जर फॉर दिस सर्कल द रेडियस इज इक्वल टू आर. लार्जर का एक ही सर्कल है अभी तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, सो दिस इज आर, दिस विल ऑल्सो बी आर. तो साइड लेंथ ऑफ दिस लार्जर स्क्वायर ए बी सी डी, साइड लेंथ कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा. साइड लेंथ ऑफ ए बी सी डी इज 2r. ओके, सो ए बी will be equal to 2r. Similarly, ये जो inside वाला अपना square है, let us say that square is PQRS. So for PQRS, the diagonal is 2r. Diagonal is 2r. And if diagonal is 2r, तो side length क्या होगा? Side length will be 2r divided by root 2. So this will be root 2r. So PQ equal to QR equal to RS equal to SP, that is equal to root 2r. Okay, ठीक है. अब एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ ABCD? 2r का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4r स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस है r, तो पाई r स्क्वायर. And area of PQRS, this will be root 2r का whole square, that will be 2r square. So ratio of these areas will be equal to r square तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 is to pi is to 2. The ratio of areas will be 4 is to 5 is to 2. Okay, क्या ये क्लियर है? ठीक है. Okay. Next case. Now in this case we have two circles. One is the inner circle of the square, second is circumcircle of the square. दो circles हैं हमारे पास. ठीक है, एक है inner circle और एक है circumcircle. We need to find out again ratio of areas of circles as well as the square. फिर से square हमारा है ABCD. Okay, and smaller circle has radius small r and larger circle का radius मान लेते हैं capital R. This is capital R. Okay. So side length क्या हो जाएगा हमारा? Side length will be 2 times small r. This will also be r. तो AB will be 2r. 2 times small r. So if AB is 2 times small r, then we know, let us say this point is ये तो O तो हमारा सेंटर हो गया. Let us say this is x और ये x है, तो dx will also be equal to small r because पूरा side length हमारा 2r है, तो half the side length will be r. Now this is a right angle triangle with two sides r, तो हमारा radius of the circumcircle capital R will be equal to root 2r or r root 2. Okay, ठीक है. So AB comes out to be equal to 2 times small r. स्मॉलर सर्कल की तो रेडियस r ही है, कैपिटल R है हमारी सर्कमसर्कल की रेडियस विच इज इक्वल टू r रूट 2. सो यहाँ से हम एरिया निकल जाएगा हमारा. लार्जर सर्कल का सर्कम सर्कल का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कम सर्कल
will be pi into r root 2 का whole square. Area of ABCD, square ABCD, will be 2r whole square. And area of incircle will be pi into r square. So ratio will be equal to ratio of all these areas क्या आ जाएगा, पाई तो नहीं कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. So this will be 2 pi is to 4 is to pi. This will be ratio of areas. Okay, clear है? 2 pi is to 4 is to pi. That will be ratio of areas. अब करते हैं क्वेश्चंस. क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है. सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऑन स्क्वायर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिफरेंस इन एरिया बिटवीन अ स्क्वायर विद डायगोनल 10 सेंटीमीटर एंड अ रॉम्बस विद अ डायगोनल ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? डायगोनल गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो अब या तो डायगोनल से साइड निकाल लो या फिर स्ट्रेट अवे एरिया निकाल लो. और एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल बी 1/2 टाइम्स डायगोनल का स्क्वायर. तो एरिया विल बी 1/2 into 10 square, which is 100/2, 50 square centimeter. And for the rhombus, one diagonal is 12 and side length is 10. तो अगर side length 10 given है, so half the diagonal will be 6. तो second diagonal का half the dimension कितना होगा? 8 होगा, because 6, 8 और 10 वाला ट्रिपलेट बन रहा है स्ट्रेट अवे. अदरवाइज फॉर्मूला d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर से निकाल लोगे. ठीक है, तो 6, 8 और 10 आ गया हमारा. अब एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा रॉम्बस में? रॉम्बस में एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 d1 d2, और d1 है 12, d2 है 16, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 16, 6 इंटू 16 दैट इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो स्क्वायर का एरिया आ गया 50, डायगोनल का और रॉम्बस का है 96, तो डिफरेंस आ गया हमारा 46 स्क्वायर सेंटीमीटर का. ये क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है, तो दिस विल बी द डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A rhombus and a square have the same perimeter. Perimeter equal है, but the area of the rhombus is 4% less than the area of the square. What is the ratio of the longer diagonal of the rhombus to the shorter diagonal of the rhombus? Perimeter same है, but area of the rhombus is 4% less than the area of the square. Perimeter same होने का मतलब क्या हुआ कि side length same है. Side length is same in both rhombus as well as square. और percentage में बात कर रहा है क्वेश्चन कि area of the rhombus is 4% less than the area of the square. So what is the ratio of the longer diagonal of rhombus to the shorter diagonal of the rhombus? अब एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर. तो सिंस परसेंटेज में बात की है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें रेशियो चाहिए. तो लेट्स एज्यूम ए इज इक्वल टू 10. तुम 1 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो, बट क्योंकि परसेंटेज में हमें 4% भी निकालना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा. सो हमने 10 इसलिए एज्यूम कर लिया बिकॉज ए स्क्वायर विल बी 100 नाउ. सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100. And since area of rhombus is 4% less, तो rhombus का एरिया क्या आ जाएगा? 100 minus 4, 96, and that will be 1/2 d1 d2. ठीक है, पेरीमीटर सेम है, यानी कि साइड लेंथ तो rhombus का भी कितना है? For rhombus also side length a is equal to 10 only. 1/2 d1 d2 है 96, तो d1 d2 आ जाएगा हमारा इक्वल टू 192. एंड a is 10, तो अगेन वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर. सो यहां से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 100, 400. एंड सिंस हमें रेशियो चाहिए लॉन्गर डायगोनल और शॉर्टर डायगोनल का, यानी कि d1 और d2 की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि रेशियो निकालना पड़ेगा. तो फॉर रेशियो सॉल्व करते हैं इसको. सो ऐड करते हैं 2d1 d2 और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2d1 d2. सो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 विल बी इक्वल टू 400 प्लस 384, 784 आ गया. एंड d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस 2d1 d2, दिस विल बी इक्वल टू 400 माइनस 384 विच विल 16. सो यहाँ से d1 प्लस d2 होल स्क्वायर इज 784. तो d1 प्लस d2 कितना आ जाएगा? दिस इज 28 का होल स्क्वायर. 784 इज 28 का होल स्क्वायर. तो d1 प्लस d2 विल बी इक्वल टू 28 और 16 है 4 का होल स्क्वायर, तो d1 माइनस d2 आ जाएगा इक्वल टू 4. Add these two,
तो d1 comes out to be equal to 16. Subtract these two, d2 comes out to be equal to 12. d1 is 16, d2 is 12. So ratio of longer diagonal to the shorter diagonal कितना होगा? 16 is to 12, 4 is to 3. Answer option B. Ratio will be 4 is to 3. क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 4 is to 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next is the figure below shows two concentric circles with center O. There are two concentric circles with center O. PQRS is a square inscribed with the outer circle. It also circumscribes the inner circle. Touching it at points B, C, D and A, what is the ratio of the perimeter of outer circle to that of polygon ABCD? Ratio of perimeter of the outer circle to that of polygon ABCD. Okay, क्या होगा? Outer circle का perimeter divided by that of polygon ABCD. तो उसके लिए पहले हमें पॉलीगॉन ABCD का डायमेंशन का यानी कि साइड का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा टू रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल. ओके, मेनी वेज टू डू दिस. एक तो लंबे मेथड कई सारे हो सकते हैं. शॉर्टर मेथड क्या हो सकता है? वन मेथड कुड बी इफ यू ज्वाइन दिस लाइन SOQ. If you join this line SOQ, now observe in triangle PSQ. ठीक है, in triangle PSQ, you can see that this point A is midpoint of PS. Isn't it so? ठीक है, midpoint होगा. अगर नहीं देख पा रहे हो ये कि midpoint होगा कि नहीं होगा, तब फिर हमें लंबे प्रोसेस से करना पड़ेगा. Similarly, B will be midpoint of PQ. A will be midpoint of PS, B will be midpoint of PQ. बिकॉज गिवन तो नहीं है क्वेश्चन में, मिड पॉइंट है. ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जब भी ऐसे हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा इनर स्क्वायर बनेगा दैट विल बी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ABCD. ठीक है, तो A और B मिड पॉइंट्स होंगे PS और PQ के. अगर ये बात समझ में आ गया तो AB विल बी 1/2 ऑफ SQ. 1/2 ऑफ SQ. ओके, और SQ हमारा क्या है? SO इज R, कैपिटल R. दिस इज ऑल्सो कैपिटल R, दिस इज 2R. सो SQ है 2R, तो AB विल बी इक्वल टू R. AB comes out to be R. तो पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा? सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा 2πr आउटर सर्कल का, और पॉलीगॉन का आ जाएगा 4R. सो π/2 विल बी द रेशियो. दिस विल बी द आंसर. ओके, ठीक है. अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते हो, जो थोड़ा सा बेटर मेथड है उसको देख लेते हैं कि ऑब्जर्व कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो. इससे हमने ये वाला रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया BOCQ. BOCQ. Now BOCQ is a rectangle. This is a rectangle. And BO is equal to capital R. OC is also equal to capital R. BO equal to OC is equal to CQ is equal to QB. ये सब हमारे इक्वल होंगे बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, टेंजेंट है ना, सो दैट इज वाई दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. और पूरा हमारा स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर है. सो BO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू QB, दैट इज इक्वल टू R. अब व्हाट विल बी लेंथ ऑफ BC? BC क्या होगा हमारा? दैट विल बी R√2. ठीक है, दैट विल बी R√2. अब एक चीज यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया कि क्योंकि सेमी डायग्राम बनाया हुआ है तो दिस शुड बी स्मॉल r. इसको स्मॉल r मान लेते हैं बिकॉज ये इनर सर्कल का रेडियस दिखा रहा है, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो दिस इज स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r, सो ऑल दीज आर इक्वल टू स्मॉल r. सो BC विल बी इक्वल टू स्मॉल R√2. ओके, and so will be OQ because BC and OQ are diagonals of square. So equal होंगे.
एंड इफ दीज आर इक्वल तो ओ क्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर रूट टू, और ओ क्यू क्या है, लार्जर सर्कल का रेडियस है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर रूट टू. ओके, तो 4 टाइम्स स्मॉल आर इज द पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी, बिकॉज उसका एक साइड में हमें पता चल गया, नहीं 4 टाइम्स स्मॉल आर नहीं है, BC is r root 2, so this is 4 times r root 2. This is perimeter of ABCD because one side length is r root 2 और capital R is also equal to small r root 2. So perimeter of larger circle, the outer circle will be 2 pi into r root 2. So r root 2 से r root 2 cancel out हो जाएगा. This will be 2 by pi. 2 by pi एक्चुअल में इसलिए आ गया है क्योंकि हमने पॉलीगॉन को ऊपर रख दिया, अदरवाइज पाई बाई 2 आंसर होगा. ठीक है, सो ये भी एक लास्ट में देख लेना. क्या ही क्लियर है? तो ऐसे भी सोच सकते हैं. ठीक है, ओके, बिकॉज ये वाला पार्ट हमें सिमेट्री से दिख रहा था, यहां पे प्रॉपर्ली लॉजिकली हमने सॉल्व किया है. ओके, ठीक है. Next question. The adjoining figure shows a set of concentric squares if the diagonal of the innermost square is 2 units and if the distance between corresponding corners of any two successive squares is 1 unit. Find the difference between the areas of the 8th and the 7th squares counting from the innermost square. So diagonal की वैल्यू हमें क्या गिवन है? Diagonal of the innermost square is 2 units. So for the innermost square, this diagonal, let us say, is 2. This is equal to 2. Then distance between the corresponding corners of any two successive squares, corresponding corners of any two successive squares is 1 unit. यानी कि let us say the distance between these two corners, this is 1 unit. This is 1 unit. Similarly, this distance is also equal to 1 unit. ठीक है, डायग्राम देख के ऐसा लग नहीं रहा है, but this is 1 unit. So अगर ऐसा है, so in that case second square में हमारा डायगोनल का लेंथ क्या होगा? 1 plus 2 plus 1, that will be equal to 4 units. तो स्क्वायर नंबर 1 में diagonal length is 2. Square number 2 में diagonal length is 4. Similarly, this distance is also 1 and this is also 1. तो square number 3 में क्या होगा diagonal? That will be 6. So pattern समझ पा रहे हो क्या आप? Square number 7 में क्या आएगा? That will be 14. 7 into 14 और square number 8 में that will be 16. अब या तो डायगोनल से तुम एरिया निकाल लो बिकॉज हमें एरिया का डिफरेंस चाहिए, और या फिर डायगोनल से साइड निकालो फिर एरिया निकालो. बेटर क्या है? डायगोनल से एरिया निकालो बिकॉज एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1/2 टाइम्स डायगोनल का स्क्वायर. सो 7th वाले का एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 14 स्क्वायर. और 8th वाले का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 16 स्क्वायर. क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ द एरियाज पूछा है, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ द 8th एंड 7th स्क्वायर. तो 1/2 into 16 square minus 14 square. So 16 plus 14 into 16 minus 14 divided by 2. आंसर आ जाएगा 30. ऑप्शन बी will be the answer. ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next is an equilateral triangle BPC is drawn inside a square ABCD. What is the value of angle APD in degrees? What is the value of angle APD? डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओगे इस क्वेश्चन का तभी समझ में आएगा, बिकॉज डायग्राम गिवन नहीं है और डायग्राम सही से नहीं बनाया, गड़बड़ बना दिया तो फिर फंस जाओगे क्वेश्चन में. सो BPC is drawn inside a square ABCD. ओके, let's say this is B, this is C, this is A, this is D. तो BPC is the equilateral triangle inside the square ABCD. तो पॉइंट P कहां पे होगा? पॉइंट P will not be on side AD. ये assumption अपने एंड पे नहीं ले लेना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, तो साइड लेंथ क्या होगा? BC will be equal to BP और BC equal to AB है. तो अगर परपेंडिकुलर होता तब तो डेफिनेटली AD पे होता कहीं पे. ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होता BC पे किसी पॉइंट से तब तो AD पे होता, बिकॉज साइड लेंथ जो हमारा है for the equilateral triangle that is equal to AB also.
बट सिंस दैट इज एट द एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है, तो डेफिनेटली हमारा जो P पॉइंट आएगा दैट विल बी समवेयर हियर. ओके, let's say this is point P, because this angle is 60 degrees, this is also 60, और BP कितना है, BP is equal to BC is equal to CP, and that is also equal to AB, that is also equal to CD, that is also equal to AD. क्या ये क्लियर है? ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट था, कैसे बनाओगे तुम, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे डिपेंड करता है. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एंगल APD, यानी कि AP और D को भी ज्वाइन करते हैं, AP एंड PD को भी ज्वाइन करते हैं. कर दिया ज्वाइन. अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, पर ये स्क्वायर है तो ये पूरा एंगल तो हमारा 90 है, ये पूरा एंगल तो 90 है, सो दिस एंगल विल बी 30. एंड सिंस AB इज इक्वल टू BP, AB इज इक्वल टू BP, सो इफ AB इज इक्वल टू BP इन ट्रायंगल ABP, तो ट्रायंगल ABP में BAP एंगल हमारा BP एंगल के इक्वल होगा, यानी कि दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. एंड इफ दिस एंगल इज 30, तो बचे हुए एंगल्स का सम क्या होगा, 150, सो दीज एंगल्स विल बी 75 एंड 75 ईच. ये वाला एंगल वर्टेक्स एंगल तो इक्विलेटरल एंगल 60 ही होगा, दिस इज 60, दैट इज 75. सिमिलरली जैसे ये 75 वैसे ये भी 75 आ जाएगा, बिकॉज दिस विल ऑल्सो बी 30, दीज टू आर ऑल्सो इक्वल, so this will also be 75, this will also be 75. और जब ये एंगल्स हमारे सारे आ गए, सारे एंगल्स हमें पता चल गया, तो फिर जो बचा हुआ एंगल है वो तो पता चल ही जाएगा. So this angle will be equal to what? This will be equal to 360, total 360 है, minus 75 plus 60 plus 75. 75 plus 75, 150 plus 60, 210. 360 minus 210 is equal to 150 degrees. So this angle comes out to be 150 degrees. Option E is the answer. This will be 150 degrees. Okay. ठीक है. एंड दीज एंगल्स आर 15 डिग्रीज ईच. इनको भी निकाल सकते थे तुम, 75 से इनको भी निकाल सकते थे. दिस विल बी 15, दिस विल बी 15, और इनको निकाल के 180 में सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी आंसर आया था. बात एक ही है, कैसे भी सोच लो. ठीक है, तो आंसर हमारा 150 आ जाएगा. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Inside a semicircle of radius r, a triangle, a square, and a circle of maximum area are drawn. So we have to find the ratio of their areas respectively. There is a triangle, a square, and a circle that is drawn inside a semicircle of radius r. And we need to find out ratio of their areas क्या होगा. तो semicircle के अंदर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर एंड सर्कल ऑफ मैक्सिमम एरियाज. So first of all, let us draw the triangle of maximum area. Triangle का शेप क्या होगा? Triangle of maximum area inside a semicircle. Inside a semicircle. So that should be a right angle triangle. इस semicircle में बन रहा है, तो this angle will be 90. Isn't it so? ठीक है. एंड दिस इज रेडियस, तो रेडियस हमारा r है, दिस इज r, दिस इज r, एंड दिस हाइट विल ऑल्सो बी इक्वल टू r, बिकॉज ये भी तो रेडियस ही है. सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 1/2 into base which is 2r into height which is r, so this will be equal to r square. So area of triangle will be equal to r square. फिर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. अब एक स्क्वायर ड्रॉ करना है मैक्सिमम एरिया का, दैट इज आवर पर्पस. तो स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे? लेट अस से दिस इज द स्क्वायर. ठीक है, सिमेट्री को हमेशा एज्यूम करना है, सिमेट्री के हिसाब से चलना है. स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगा. दिस पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल विल बी एट द मिडिल. ओके, ठीक है, क्या है, क्लियर है? एंड इफ दिस स्क्वायर इज लेट अस से ABCD, सो OC विल बी रेडियस और OD भी रेडियस होगा. OC इज रेडियस R, दिस इज ऑल्सो R, isn't it so? ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू x.
सो दिस विल ऑल्सो बी एक्स, और क्योंकि स्क्वायर है तो ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो बी सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ओबीसी, ट्रायंगल ओबीसी में। तो इन ट्रायंगल ओबीसी एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 5x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ दिस स्क्वायर क्या होगा, 2x साइड है तो दिस विल बी 2x का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 4x स्क्वायर। बट सिंस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर आ रहा है आर स्क्वायर बाई 5, सो 4x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 5। सो दिस विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर। Now third part is most easy, circle of maximum area, ये तो सबसे आसान है। Circle of maximum area will be this, and this is the radius. Radius अगर हमारा r है, this is r, तो radius of this smaller circle will be r by 2, r by 2 हो जाएगा। तो area of circle will be equal to pi into r by 2 का स्क्वायर, तो pi r स्क्वायर by 4। ओके, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4r स्क्वायर बाई 5 इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर बाई 4 इज एरिया ऑफ सर्कल इनसाइड द सेमी सर्कल। सो रेशियो विल बी आर स्क्वायर इज टू 4r स्क्वायर बाई 5, फ्रेश पेज पे कर देते हैं। तो फॉर ट्रायंगल, फॉर स्क्वायर एंड फॉर सर्कल द एरिया इज आर स्क्वायर 4r स्क्वायर बाई 5 एंड पाई आर स्क्वायर बाई 4। So ratio comes out to be r square तो कैंसिल आउट हो गया, 1 is to 4 by 5 is to pi by 4, and as such area of the triangle is greater than area of the square and that is greater than area of the circle. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके है कि नहीं? Isn't it so? So that will be a pattern and that's the last question of the session. I believe जितना भी डिस्कस किया इस सेशन में समझ में आया होगा, एंड कहीं पे भी कोई डाउट रहा हो तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, उसको भी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। एडिशनली मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक एज वेल इन द कमेंट्स। ओके, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कसिंग क्या बच गया है, ट्रेपेजियम बच गया है, तो ट्रेपेजियम को डिस्कस करेंगे। और एडिशनली एक और कॉन्सेप्ट बच गया है पैरेललोग्राम का, एरियाज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसपे 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे बढ़िया से। चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।